પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી થોડી વારમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે પરીક્ષા પર ચર્ચા કરશે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે વાતચીતનો આ કાર્યક્રમ પરીક્ષા સંબંધી તણાવને દૂર કરવાના મુદ્દા સાથે જોડાયેલો છે। પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમ દિલ્હીના તાલકટોરા ઇન્ડોર સ્ટેડિયમમાં યોજાશે, જેમાં પ્રધાનમંત્રી આગામી બોર્ડની પરીક્ષા આપનાર વિદ્યાર્થીઓ સાથે ચર્ચા કરશે। આ કાર્યક્રમ દરમિયાન પીએમ મોદી વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાને લઈને તણાવ અને અન્ય મુદ્દાઓ સાથે જોડાયેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપશે। પીએમ મોદીના આ જ પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમ માટે ગુજરાત સહિત દેશભરમાંથી 38 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ રજીસ્ટ્રેશન કરીને એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે। આ વખતે રજીસ્ટ્રેશન કરનાર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ગયા વર્ષની તુલનામાં 15 લાખ વધુ છે। થોડી જ વારમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પરીક્ષાર્થીઓને આપશે મંત્ર। પરીક્ષા દરમિયાન જે તણાવનો અહેસાસ વિદ્યાર્થીઓ કરતા હોય છે તેને કઈ રીતે દૂર કરવું અને સાથે જ વાલીઓ કઈ રીતે વિદ્યાર્થીઓને મદદરૂપ થઈ શકે છે તે વિશે પણ પ્રધાનમંત્રી મોદી માર્ગદર્શન આપશે। આમ તો ગયા વર્ષે પણ આ જ પ્રકારે પરીક્ષા પે ચર્ચાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારે પણ વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું હતું કે અમને થોડી રાહત જરૂરથી મળી છે। પ્રધાનમંત્રી સાથે ચર્ચા કરીને અમદાવાદ, વડોદરા અને સુરતના વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમમાં જોડાશે અને પોતાના જે પ્રશ્નો છે તેને લઈને પ્રધાનમંત્રી પાસેથી જવાબ લેશે અને માર્ગદર્શન મેળવશે। તાલકટોરા ઇન્ડોર સ્ટેડિયમમાં પ્રધાનમંત્રી મોદી પહોંચ્યા છે। અહીં વિદ્યાર્થીઓ પહેલેથી હાજર છે। ઘણા એવા વિદ્યાર્થીઓ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી પણ પોતાનો જે પ્રશ્ન છે તે રજૂ કરશે અને પ્રધાનમંત્રી આ તમામ વિદ્યાર્થીઓના જવાબ આપશે। આ વખતે 38 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે। ગયા વર્ષની તુલનાએ 15 લાખ વધુ વિદ્યાર્થીઓ જે આ વખતે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું અને આ રેકોર્ડ છે, નવો રેકોર્ડ છે જે પરીક્ષા પે ચર્ચા દરમિયાન સર્જાયો। પરીક્ષાર્થીઓને પ્રધાનમંત્રી મોદી મંત્ર આપશે। ઘણા એવા પ્રશ્નો જે સામાન્ય રીતે વિદ્યાર્થીઓના મનમાં રહેતા હોય છે તે એ છે કે જે પરીક્ષાનો તણાવ છે તે કઈ રીતે દૂર કરવો। પ્રધાનમંત્રીએ ગયા વર્ષે પણ એ જ પ્રયત્ન કર્યો હતો કે બોર્ડના જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે ખાસ કરીને આ સ્ટ્રેસ અનુભવતા હોય છે અને તેને કઈ રીતે મુક્તિ મળી અને સાથે જ આખું ધ્યાન મહેનત પર હોવું જોઈએ। ફોકસ એ જ કે પરીક્ષાને કઈ રીતે સારી રીતે આપી શકીએ અને સારા ગુણ મેળવી શકીએ। પ્રધાનમંત્રી મોદી તાલકટોરા સ્ટેડિયમ પહોંચ્યા છે, વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરતા જોવા મળ્યા છે। અમદાવાદ, સુરત અને વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ પણ પોતાના પ્રશ્નો રજૂ કરશે અને માર્ગદર્શન મેળવશે। પ્રધાનમંત્રી તેમને જવાબ આપશે। ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ જ નહીં પરંતુ વાલીઓ પર પણ પ્રધાનમંત્રીનો ફોકસ રહેતો હોય છે, કારણ કે વાલીઓની ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા રહેતી હોય છે। પરીક્ષા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓના જે પ્રશ્નો હોય છે તેનું ચોક્કસ નિરાકરણ વાલીઓ જ લાવી શકે છે। खास इसलिए है क्योंकि परीक्षा पे चर्चा पहली बार, आपको पता है इस बार क्या होने वाला है, 102 चयनित छात्र हैं जो यहां पर शिरकत करेंगे। 80 अवार्ड विजेता बच्चे हैं जो इस बार शिरकत करेंगे। 150 से ज्यादा देशों के छात्र, 51 देशों के शिक्षक, 50 देशों के अभिभावक इस बार पहली बार इस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। अच्छा, देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग शहरों से छात्र जुड़ेंगे। मुंबई से भी, मायानगरी से भी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में छात्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी कृष्णा ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं कृष्णा ठाकुर से क्या तैयारियां मुंबई में की गई हैं, छात्र कितने उत्साहित हैं, किस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो मोदी सर की क्लास का। बिल्कुल रमाना, देखिए एक छोटी कक्षा के छात्र छात्रा भी जब एग्ज़ाम देते हैं तो उनको भी उतना ही तनाव होता है जितना बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को, अभिभावकों को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन आज का है और जिस तरह से हमने बताया कि आज़ादी का अमृतकाल है, कल ही भारत ने गणतंत्र दिवस मनाया है, भारत G20 का अध्यक्ष है। तो इस सब के बीच भारत अपने भविष्य की भी सोचता है और ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत अपने भविष्य की भी सोचता है और पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिलेगा जब दुनिया का कोई शीर्ष नेता, दुनिया के देश का कोई शीर्ष नेता पूरी दुनिया में अपने यहाँ छात्र छात्राओं से इस तरह से रूबरू होता हो
ऐसा उदाहरण शायद ही आपको कहीं पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। और ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है कि भारत अपने भविष्य की सोचता है, भारत अपने भविष्य को तनाव मुक्त रखना चाहता है। और ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है लाइफ के अंदर कि अगर आप तनाव मुक्त रहते हैं तो आप आधी सफलता तो वहीं पर प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आज की जो भागदौड़ भरी दुनिया है और साथ ही साथ आज जिस तरह से समाज में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, उस सब के बीच थोड़ा सा मुश्किल होता है अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए और छात्र छात्राओं के लिए। लेकिन उस तनाव को किस तरह से दूर किया जाए, वो टिप्स प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अब से कुछ ही देर में दिए जाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी तालकटोरा स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। वहां पर जो छात्र छात्राएं, वहां पर उन्होंने प्रदर्शनी लगाई हुई है, विभिन्न छात्र छात्राओं ने उस प्रदर्शनी का अवलोकन इस वक्त वहां पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उनसे बातचीत भी प्रधानमंत्री इस वक्त कर रहे हैं। तो काफ़ी पहले से इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी की गई है। अभी कुछ देर पहले हमने अपने बुलेटिन में ये भी दिखाया था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हमारे संवाददाता all set to address the students, interact with them, take their questions in the 6th edition of Pariksha Pe Charcha. महान शिक्षाविद, हम सबके प्रेरणा स्रोत, युवा दिलों की धड़कन, मार्गदर्शक, दूरदृष्टा, भारत के अत्यंत लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का परीक्षा पे चर्चा 2023 में हार्दिक स्वागत, वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। का परीक्षा पे चर्चा 2023 में हार्दिक स्वागत, वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। सुस्वागतम माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। परीक्षा पे चर्चा 2023 के पावन अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को सादर आमंत्रित कर रही हूं। कृपया हम सबके प्रिय राष्ट्रीय गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में स्वागत भाषण हेतु मंच पर पधारें। माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार। नमस्कार। परीक्षा पे चर्चा की 6th एडिशन पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की शिक्षा जगत की ओर से स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। वो कुछ समय, कुछ घंटे हमारे बीच में बिताएंगे। देश की सभी प्रांतों से, सभी यूनियन टेरिटरी से आए हुए बच्चे आज दूरसंचार के माध्यम से टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे दुनिया की सभी कोने से इस कार्यक्रम को देखने वाले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षा प्रेमी, मैं सभी को स्वागत करता हूं। और यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट, सभी शिक्षक, सभी अधिकारियों को भी स्वागत करता हूं। मित्रों, परीक्षा पे चर्चा एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। पिछले 8-9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी न केवल देश को संभाला है, लेकिन देश में अनेक जन आंदोलन का भी जनक रहे। वो स्वच्छ भारत हो, वो परीक्षा पे चर्चा हो, या देश की नौजवानों के अंदर एक नई स्फूर्ति उत्पन्न करने की बात हो। परीक्षा पे चर्चा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक और समाज की जो प्रेशर रहती है, जो चुनौती रहती है कोमलमती बच्चे के ऊपर, उसको समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने उस दुविधा को स्वयं हमारे बीच में आके समाधान देने के लिए एक अभिभावक के नाते, एक युग दृष्टा के नाते, एक समाज सुधारक के नाते आज हमारे बीच में उपस्थित है। यह आज एक सटीक जन आंदोलन।
नमस्ते। शायद इतनी ठंड में पहली बार परीक्षा पे चर्चा हो रही है। आमतौर पर फरवरी में करते हैं, लेकिन अब विचार आया कि आप सबको 26 जनवरी का भी लाभ मिले। फायदा उठाया ना, जो बाहर के हैं उन्होंने गए थे कर्तव्य पथ पे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, घर जाके क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा साथियों, समय ज्यादा लेता नहीं हूं मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है, किन उलझनों से गुजरता है, देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है। और मैं तो मेरी सिस्टम को कहा हुआ है कि इन सारे सवालों को इकट्ठा करके रखिए। कभी 10-15 साल के बाद मौका मिलेगा तो उसको सोशल साइंटिस्टों के द्वारा उसका एनालिसिस करेंगे। और पीढ़ी बदलती जाती है, वैसे स्थितियां जैसे बदलती जाती हैं, वैसे उनके सपने, उनके संकल्प, उनकी सोच कैसे बहुत माइक्रो तरीके से बदलती है। इसका एक बहुत बड़ा थीसिस, शायद ही इतना सैंपल किसी के पास नहीं होगा जी तक। आप लोग मुझे सवाल पूछ करके भेजते हैं। चलिए, लंबी बातें नहीं करते हैं। मैं चाहूंगा कि कहीं से शुरू करें, ताकि हर बार मेरे पर एक शिकायत आती है कि साहब ये कार्यक्रम बहुत लंबा चलता है। आपका क्या मत है? लंबा चलता है? लंबा चलना चाहिए? अच्छा, मुझे और कोई काम करना नहीं है। अच्छा ठीक है, आप ही के लिए हूं। बताइए क्या करेंगे? कौन पहले पूछते हैं? दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को नहीं खुद को बदलना सीखे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध शहर मदुरई से अश्विनी एक प्रश्न पूछना चाहती हैं। अश्विनी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. My name is Ashwini. I am a student of
Kendra Vidyalaya number 2, Madurai, Tamil Nadu. My question to you, sir, is how do I deal with my family disappointment if my results are not good? What if I don't get the marks I am expecting? Being a good student is also not an easy job. Expectations of others become so high that the person who's giving exam gets so much stressed and they go into depression. Nowadays, it is common for students to cut their hands and become irritated, and there is no one they could trust with their feelings. Kindly guide me on this. Thank you, sir. Dhanyavad Ashwini. Honorable Prime Minister, sir. Navtesh Dagur hails from the heart of India's capital, Delhi, the imperial seat of several empires, with its charming blend of a grand medieval history and amazing architectural style. Navtesh is seated in the hall and wishes to discuss an identical issue through his question. Navtesh, please ask your question. Good morning, Honorable Prime Minister, sir. I am Navtesh Jagur of Kendra Vidyalaya, Pitampura, Delhi region. Sir, my question to you is, how do I deal with my family's situation when my results are not good? Kindly guide me, sir. Thank you very much. थैंक यू नवदेश। माननीय प्रधानमंत्री जी, संसार को शांति और करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह तथा वर्धमान महावीर की जन्मभूमि प्राचीन नगर पटना से प्रियंका कुमारी कुछ इसी प्रकार की समस्या से जूझ रही हैं और आपका मार्गदर्शन चाहती हैं। प्रियंका, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं रवीन बालिका +2 विद्यालय से राजेंद्र नगर पटना से 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे परिवार में सब अच्छे नंबर से पास हुए हैं, मुझे भी अच्छा नंबर लाना है। इसके लिए मैं तनाव में चली गई हूँ, इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका। माननीय प्रधानमंत्री जी, अश्विनी, नवतेश एवं प्रियंका यह महसूस करते हैं कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा कई छात्रों को प्रभावित करता है और इसे हल करने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। अश्विनी, आप क्रिकेट खेलती हैं क्या? क्रिकेट में गूगली बॉल होता है, निशाना एक होता है, दिशा दूसरी होती है। मुझे लगता है कि आप पहले ही बॉल में मुझे आउट करना चाहती हो। अगर परिवार के लोगों के आपसे बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है, उनके मन पे इतना प्रभाव होता है कि उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे, अगर बच्चे वीक हैं तो कैसे उनके सामने चर्चा करेंगे। और कभी कभी मां बाप भी आपकी क्षमता को जानने के बावजूद भी अपने सोशल स्टेटस के कारण अपने आसपास के साथियों दोस्तों में क्लब में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, कभी तालाब में कपड़े धोए जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, बच्चों की बातें निकलती हैं, फिर उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और इसलिए बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं अपने बच्चों के लिए और फिर धीरे धीरे वो इंटरनलाइज कर लेते हैं और फिर घर में आकर के भी वही अपेक्षाएं करते हैं और समाज जीवन में ये सहज प्रवृत्ति बनी हुई है। दूसरा, आप अच्छा करेंगे
तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए। चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है। लेकिन क्या हमें इन दबावों से दबना चाहिए क्या? पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे, अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम, हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, वे चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका चौका चौका, छक्का छक्का, शिक्षक। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है क्या? ऐसा करता है क्या कोई प्लेयर? चिल्लाते रहे, कितना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है, उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है। फोकस रहता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। हां, कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं के विषय में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपकी क्षमता बहुत है, लेकिन आप खुद ही इतने डिफरेंस मेंटालिटी के हैं कि नया करने के लिए सोचते नहीं। तो कभी कभी वो अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बड़ी ऊर्जा बन जाती है। और इसलिए अपेक्षाएं, मां बाप को क्या करना वो मैंने पहले ही कहा, सामाजिक दबाव में मां बाप ने बच्चों पर दबाव ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से कम भी अपने आप को नहीं आंकना चाहिए।